Okay. When we talk about complex numbers, right? So complex numbers are those, right? For example, if we have a negative in the root form, -1, then we write that it's a complex. We have given it in the form of, it is known as I or iota that we call, right? So a complex number has one imaginary part as well. This is also known as the imaginary part, right? For example, it can be 2 plus 2i, it can be anything. So how we attempt and how we solve the complex numbers, this whole is known as the complex number. Okay, for the summation, what is I? I is equals to root minus 1. So for example, if I want to do I square, I would be doing it root minus 1 square. So this is cancelled, this is equivalent to minus 1. Okay, what would be I cube? I cube would be simply minus 1, that is I square, multiplied with iota, that would be minus I. And similarly, I4 would be minus 1, that is I square, multiplied by I square minus 1, that is equals to 1. So the basic is that you should be aware of these fourth values or four numbers. Now how to attempt them in addition and subtraction, then multiplication and division, right? Addition and subtraction, for example, 2 plus 2i plus 1 plus I, for example. So the real numbers, the real part, this is the real part, right? So the real would be added to the real, that becomes 3 and 2i, and the imaginary with the imaginary 3i. Simplified 3, 1 plus I. Similarly would be the subtraction. But what about the multiplication? How we would be attempting multiplication? So for example, 2 plus 2i multiplied with 1 plus 2i, for example. So 1, so 2 plus 2i multiplied with 1 would be giving us 2 plus 2i. 2i multiplied with 1 plus 2i would be 2i into 1 is 2i, and 2i multiplied with 2i. So all these terms could be solved easily. This becomes 2 plus 4i plus 2 into 2, 4. I into I is I square. Now if we recall from here, what is I square? I square is minus 1. So it becomes, this is minus 4. This is 2 plus 4i. It becomes minus 2 plus 4i. And we can simplify it further later. Now how we would be solving the roots? For example, if I have something in the form of 1 plus 2 plus I, and they call us like to further simplify this. So what I would be doing, I would be multiplying it. Rationalizing. Yeah, rationalization. That is how we solve surds and everything. So it would be 2 minus I upon 2 minus. That is simply rationalization. Right? So 2 minus I above, and the term that is at the denominator becomes what? 2 whole square minus iota whole square, and I square is what? Minus 1. So 2 minus 1 upon 4 minus 1, minus minus plus 1, 5. Are you getting my point? This is minus 1 minus minus plus. So 2 minus 1 upon 5, that would be the answer. Now coming to two questions. I have taken these two questions from the test. One is question number 11 without calculator, and the other is the one with the calculator. So we will be going through that. Okay, let's have a look at this one. Given that
root minus 1 is equal to iota, which of the following is equivalent to the sum of 125 plus I power 125. I power 125 plus I power 125. So first things first, what we will be doing, what is I power 5, because 125 is a multiple of 5. So what we are getting at I power 5, we would be getting the same at I power 125. Is this clear? Yes, sir. Clear. So if you recall from the earlier example, what was I4? I4 can be written as I square into I square. I square was minus 1 multiplied with minus 1, it was coming plus 1. So what would be I5? I5 would be I4 multiplied with I, that is equivalent to 1 into I, that is equivalent to I. So I5 is I. Okay. So that is the thing. So now if I5 is I, then I25 is what? What would be I25? I125, what would it would be? Yes? सर ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा, हमें चेक करना पड़ेगा I6, I7 till I25, I125. No, you don't have to check, na. It is the same number, na. Look, this is a repetitive pattern. In terms of pattern, it is repetitive. Okay. So after every fifth value, we would be getting what? I. ये बात clear है? We जी would be getting a value of I after every fifth term. So it means that after the 125th term, our value would be I. Okay. समझ नहीं आ रहा सर. मैं ये कह रहा हूं कि हर पांचवी जो टर्म आएगी वो आई ही आएगी. फॉर एग्जाम्पल I5 ये होगी, I10 जो होगी वो भी आई होगी. सही. I15 जो होगी वो भी आई होगी. तो एवरी फिफ्थ टर्म वुड बी आई. सो वी कैन से दैट I125 वुड बी आई. बात क्लियर है? 125 भी आई होगी. रेपिटेटिव है. जी सर, हर पांचवी के बाद आई चलता रहेगा ना. ठीक है. तो ये यानी आई आएगा, तो पहले का आंसर क्या आएगा? रिजल्ट सर आई आ रहा है. नेक्स्ट वाले का क्या रिजल्ट आ रहा है? वो भी यही है, तो आई आएगा. जी. आंसर क्या आ गया? इक्वल्स टू 2i. 2i हमारे पास आंसर आ गया. अब हमें ऐसी टर्म चाहिए इसमें से हमें ऐसी टर्म चाहिए जिसका आंसर क्या है? 2i आए. राइट. जी. सर मैं यहाँ देखता हूं तो 2i इसमें से एक ये वाली है और एक ये वाली है. तो ए भी तो क्रॉस कर दिया हमने. सही. ए और बी तो हट गए ना, क्योंकि 2i तो उसमें है नहीं. अब इसमें से क्या है सर? अगर मैं सी को देखता हूं तो सी से हमें क्या पता चलता है? सर उसकी पावर 45 कैसे है? ये दी हुई है ना, 2i पावर 45 दी हुई. अब मुझे इस चीज को मॉनिटर करना है. ये जो 45 है, सही. अगर मैं पैटर्न देखूं, इसका पैटर्न के ऊपर आ जाओ. पहले आता है सर, पहली टर्म जो है वो क्या है? फर्स्ट टर्म इज आई. राइट. सेकंड क्या है? आई इंटू आई. आई स्क्वायर कितना आ रहा है? -1. शाकिर. थर्ड टर्म क्या है? -i. फोर्थ क्या है?
1 1 फिफ्थ क्या है, फिर दोबारा I आई आ रहा है फिफ्थ, तो इसका मतलब रिपीट कितने के बाद हो रहा है, इट इज सेड रिपीटिंग आफ्टर एवरी 5 4 टर्म्स, 4 के बाद जी सर रिपीट हो रहा 4 है ना, टर्म्स तो यानी जी 4 का सेट है, यानी सर ये जो 125 बना, अगर मैं इसको डायरेक्ट करूं कि सर ये डायरेक्ट क्या वैल्यू आएगी, मैं कहूंगा 125 डिवाइड बाय 4, ये जो पैटर्न बना तो मैंने किया, ये कितना बनता है 31, सही है, 431 से कितना होता है, 125 सही है, और 124 होगा ना, 124 होगा, जी सर 124 है और वन रिमाइंडर का क्या मतलब है कि एक और टर्म होगी, यानी ये चारों सेट कंप्लीट होंगे और एक और टर्म जो होगी वो क्या होगी, आई होगी, जाहिर है वो नेक्स्ट टर्म होगी ना इसके बाद वाली, जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसी में आ जाओ, सर मैं आ गया इधर 250 वाले के ऊपर, पहले तो मैंने कहा 250 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना हो गया 62, लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है, सही सर आवाज कट रही है मैं ये कह रहा हूं ये कितना हो गया 4 का, ये कितना हो गया 62, जी 62, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, सर इस पे भी 1 आ रहा है मेरे भाई 62 के बाद 2 रिमाइंडर नहीं बच रहे हैं, जी सर 2 बच रहे हैं ना, 2 रिमाइंडर, जी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, सर 2 ही बच रहा है अब आ जाओ 45, ये जो है 45 डिवाइड बाय 4 करो, कितने आ गए 11, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, सर 5 भाई रिमाइंडर कितना 5 बच रहा है, जी सही इसमें 5 बचा है भाई रिमाइंडर 5 बच सकता है, 4 से डिवाइड कर दो यार, क्या हो गया, 1 बच रहा है ना, जी सर शाकिर ये समझ नहीं आया मुझे लगा तुम्हें, सर मैंने आज तक कैलकुलेटर से ही किया ना, तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की नहीं सही 4 तरह 11 मैंने 44, सर रिमाइंडर को है जो इसमें ऐड करके पूरा बना देना ये देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे कर लो भाई, ये 4 11 से कितना 44, जी ये रिमाइंडर होता है, सही, वो ये क्वेश्चन क्वोशिएंट कहलाता है, क्वोशिएंट, जी क्वोशिएंट, और ये डिवाइजर कहलाता है, जी सर ये तरीका पड़ा हुआ है इसमें पॉलिनोमियल में हाँ पढ़ा हुआ है ना, तो ये तो लॉन्ग डिवीजन में है ही, तो ये मैं कह रहा हूं जी कि आपने 4 का सेट रिपीट हो रहा है, तो हमने कहा सेट के बाद कौन सा 1 रिमाइंडर आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो 125 वाला बन रहा है उसमें रिमाइंडर कितना है 1, राइट, जी तो एक ये ऑप्शन 45 वाले में आ रहा है 1 रिमाइंडर, सो व्हाट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी, जी लिख लो, पहले से लिखो, सर 14 अब मैं ट्राई कर सकता हूँ खुद से हाँ हाँ ट्राई करो करो, क्या बोल रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स 2/1 + i प्लस 2 + 5 + i, सही, इन दोनों का ऐड करना है, नीचे 1 कंसीडर करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 1 + i से नीचे जो मल्टीप्लाई करोगे उसी को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, यही किया, नहीं सर ये जो 2/1 प्लस i+6 है ना उसको रेशनलाइज करके 2 + 5 i के साथ ऐड कर रहा था मैं नहीं तो आई सॉरी i+6 से ही, नहीं तो रेशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है भाई, रेशनलाइज तो जब करते हैं जब अगर एक ही टर्म मौजूद हो, तो फिर हम रेशनलाइज भी करेंगे इस बात को, इसमें तो हमारे पास 2 टर्म्स है, दोनों को ऐड करना है सिंपली, ये i+6 है,
डिनोमिनेटर i प्लस 6 होना चाहिए ना, दोनों दो टर्म दो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाएगा? ऐसे ही जी करोगे सर ना, बिल्कुल। तो सिंपल रखो, फिर नीचे आ जाएगा i प्लस 6, ऊपर क्या आ रहा है 2 पहला, फिर क्या आता है 2 इंटू आई कितना होता है 2i प्लस, फिर क्या है 2 इंटू 6 12, फिर सर 5i इंटू आई 5i स्क्वायर, और 5i इंटू 6 कितना होगा 30i। सही हो गया सर? आई कितने आ रहे हैं 2 और 30 32, तो 32i, 2 प्लस 12 14 प्लस 5 आई स्क्वायर अभी हमने पढ़ा क्या होता है -1 अपॉन आई प्लस 6, सो 32i। अभी यहां पे आओ तो 32i के दो ऑप्शन आ रहे, बिल्कुल ये प्लस 14 माइनस 5 कितना होता है प्लस 9 अपॉन आई प्लस 6, देख लो एक ही ऑप्शन। कहाँ मुश्किल कहाँ था, बिल्कुल इजी।